Hello dear students, I'm Ajay Karmarkar. Before starting this video, I would like to say something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, then note it and proceed further. And although you have facing any problem or difficulties, please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you. Hello dear students, we have to continue for lecture 4. Here this lecture 4 is based on the parallel combination of resistance and series combination and change the resistance. Let's see what the question says. Here find the value of current I in the circuit. Here we have given that input 2 voltage and this is 30 ohm resistance, 30 ohm resistance and 30 ohm resistance. Let's see here this is the single wire. Why we can say that is a single? Because it is connected to A and B, and so therefore here ACB is the single wire. And how many resistance we connected it? Here 30 ohm and 30 ohm. Here 32 resistors they are connected in series. So we know that very well. The resistance which you have in series, when we using this formula. So now this 30 and this 30 become 60. Okay, so here let we have draw equivalent circuit again, 30 ohm and here 60 ohm resistance. Okay, so now this becomes 60. Now 60 and 30 again this become parallel. Okay, so what is the formula of parallel? 1 upon R, 1 upon R1 plus 1 upon R2. 1 upon R equal to 1 upon 30 plus 1 upon 60. Then taking the LCM, that is 60 and 32s are 60, 61s are 60, then 1 upon R equal to 3 by 60, then R equal to 60 by 3, that is 20. Okay, so now again redraw. Here we can see that is 20 ohm resistance. Okay, so here input potential is 20 and resistance is 20 ohm. Now the formula here I equal to V by R. Here what is the potential, input potential, that is 2 volt, and here the resistance is 20. So 2 ones are 2, 2 tens are 20, then I equal to 0.1 ampere. So it is the correct answer. Here what the question says, here we have to find out the equivalent resistance, the terminal A and C. Okay, here the terminal A and C. Let me redraw. You can see that ADC, that is the single wire, and there are two resistance consist in it, means 3 ohm and 7 ohm. So it is in series. So here 7 ohm and 3 ohm, that is 10 ohm. Okay, here 10 ohm from A to C, and here again you can see that this is 10 ohm A B C D. So here A B C, there is also, it is in series, so 10 and 5, that become 15 ohm resistance. Okay, now find equivalent resistance. 1 by R equal to 1 by 10 plus 1 by 10 plus 1 by 15. Then 1 by R equal to, taking the LCM, that is 30, 10 is a 30, 10 is a 30, 15 to the 30. So now 1 by R equal to 3, 3, 6, 7, 8 by 30. Then R equal to 30 by 8. 2 4s are 8, and that is 15. So here equivalent resistance 15 by 4 ohm. Okay. Let's see what the question says. Here calculate the current shown by the emitter A in the circuit. तो यहाँ देखिए सबसे पहली बात तो ये है, इस सर्किट में, इस वायर में, इस कंडक्टिंग वायर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो इस वायर को हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके रीड्रॉ करके देखते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन एक, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक कनेक्शन हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो कुल मिलाकर के 3 कनेक्शन हुए। दिखने में कितने लग रहे हैं? 1 2 3 4, और ये दो मिलकर के एक बन जाएगा। ठीक है, और ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल हो जाएंगे ऐसे। ये 10 ओम, ये भी 10 ओम, और ये दोनों यहाँ जंक्शन से कनेक्टेड हैं। चलिए यहाँ पर फिर से देखिए इस प्रकार से
10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पर भी कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, मतलब पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है। तो यहाँ पर तीनों को कनेक्ट कर देंगे ये इस प्रकार से। तो ये 5 ओम का ये हो जाएगा और 5 ओम का ये हो जाएगा। इस प्रकार से ये सर्किट बन गया है। एक बार फिर से ध्यान रखिए कि ये जीरो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि जब कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं होती है, मतलब कोई कंजम्पशन नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वहां कुछ नहीं होगा। भाई जहां से जाने में कोई वर्कडन ही नहीं लगता हो, तो वहां क्या होगा, वहां कोई खर्च कुछ नहीं होगा, पोटेंशियल खर्च नहीं होगा, तो उसे हम पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल बोलते हैं। तो ध्यान रखिए जहां कोई डिवाइस नहीं कनेक्ट हो, या कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो हम इसको मिला करके एक बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये वाला वायर और ये वायर वायर निकल रहा है, तो ये वाला वायर और ये वाला वायर निकल रहा है, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत आसान हो गया। अब ये 5 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पर 10 और ये 10 कितना हो जाएगा, 1। इसको भी एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस का पैरेलल अगर हो तो R1 R2 R1 प्लस R2, ये एक शॉर्टकट तरीका है, उसी का एलसीएम लेकर बना हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10, और नीचे 10 प्लस 10 मीन्स 20, तो ये 0, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 5। ये हो गया 5 ओम। यहाँ पर सिमिलरली ये भी 5 ओम हो गया, और नीचे यहाँ पर फिर 5 ओम। और ये इनपुट बैटरी कितनी है वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है। तो अब कितना हो गया, ये 5, ये 5 और 5 10, नीचे का 5, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टेकिंग एलसीएम 10, 2 1, और ये 2, तो 2 2 4 एंड 1 5, 5 बाय 10 मीन्स रेजिस्टेंस आपका 2 ओम का हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम अलग से इसे ड्रा कर लेते हैं, तो रेजिस्टेंस 2 ओम का हो गया। और हमारी बैटरी जो है वो कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की। तो एमीटर क्या शो करेगा, आई इक्वल टू 10 बाय 2, 2 5 जा 10, मतलब करंट जो होगा 5 एम्पियर का फ्लो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग है वो अपन आगे समझते हैं। इसमें कहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और दूसरा इसी में क्वेश्चन बोल रखा है कि ए और सी के बीच में निकालना है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम इनपुट यहां से और एग्जिट यहां से कर रहे हैं, तो ये वाला जो है ये ओपन सर्किट में आ जाएगा। कौन सा वाला, ये डी की तरफ गया हुआ 10 ओम, और ये सी की तरफ गया हुआ 10 ओम अपना किसी से कनेक्ट नहीं रहेगा, तो इसका हम कोई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये सिरे खुले हुए हैं। दिस इज ओपन एंड्स, ठीक है। तो अब अपना क्या रहेगा, ए और बी के बीच में यहाँ पर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर 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 10 ओम का रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस ये बी पर। इस प्रकार से सर्किट लेंगे, ये और ये सर्किट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाएंगे, यहाँ पर करंट फ्लो का कोई मतलब इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो अब यहाँ पर ये तीनों जो हैं, 10 ओम 10 ओम 10 ओम, एक सर्किट पूरा एक कंडक्टर माना जाएगा। ये कितना हो गया 10 ओम, यहाँ पर ये कितना हो गया 10 ओम, और ये कितना हो गया 10 10 20 30, तो ये हो गया आपका 30 ओम, और फिर से यहाँ पर 10 ओम। तो ये ए एंड हुआ और ये बी एंड हुआ, राइट। अब यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है, 10 और 30। वैसे ही हम फॉर्मूला लगा लेंगे डायरेक्ट, 10 इंटू 30, 10 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30/4 ओम। ओके, तो फिर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे बन जाएगा, 10 ओम और 30/4 और फिर से 10 ओम। चलिए अब इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फिर ऐड कर देते हैं, तो 10 30/4 फिर 10, एलसीएम ले लेते हैं 4, ये 40 30 40, तो ये कितना हो जाएगा 4 40 40 80, और 80 and 30, that is 110/4. Then how much, that is 4 to the 8 and 4 7 are 28.5, then R become 27.5 ohm. Okay,
Now second connection we have given A and C. A and C. So therefore here this B and this D, there is open circuit, consider open circuit, so therefore there is no use. So have we can remove this resistance. Okay, now you can see this is 10 ohm resistance which is connected to A. These are from this end to this end, that is in series. So here 20 ohm, now here again 20 ohm, and now it is 10 to go C. Okay, now these are 20 ohm and 20 ohms. There are in series parallel. So therefore R equal to 20 into 20. 20 plus 20, that is 40. So here 2 to the 4, that is 10. So here 10 ohm resistance, 10 ohm resistance, and 10 ohm resistance from A to C. Now equivalent resistance, all these resistors are in series, so therefore 10 plus 10 plus 10, we get R equal to 30 ohm resistance. I hope so you understood these questions. Thank you for staying till the end of this video. Definitely for your success, all the credit goes to your hard work. But if my video will help for your success, then I will consider myself lucky. Thank you once again. Take care. Bye bye.